वेलकम। आज हम करने वाले हैं गेट एक्सी के 2018 के PYQs ऑफ सॉलिड मैकेनिक्स। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ थिन सिलेंडर whose thickness is T and diameter is D with a closed end is subjected to internal pressure and the ratio of hoof stress to longitudinal stress develop in the wall of the cylinder is। तो क्या पूछ रहे हो? सिग्मा एच बाई सिग्मा एल, दैट इज हूफ स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का रेशियो। और हमें पता है कि मतलब अगर थिन सिलेंड्रिकल वेसल है, अगर उसे यूनिफॉर्म प्रेशर मतलब यूनिफॉर्म इंटरनल प्रेशर क्या बोलते हैं अप्लाई किया हमने इंटरनली, तो हूफ स्ट्रेस कैसे निकालते हैं हम? PD बाई 2T से, एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इज कैलकुलेट बाय PD बाई 4T। तो आफ्टर एज P सेम, D सेम, T सेम, so it is 4/2, so it is 2, so 2:1 is the correct answer. Coming to the next question, steel rod है, it is fixed at one end and free at other end. It is something like this, and the coefficient of thermal expansion is alpha for steel and modulus of elasticity is E. And if temperature of rod is increased by delta T, then stress and strain develop in the rod is। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये free to move है, that is free expansion is allowed, so no stress will develop in the rod, so stress is 0 and strain is alpha into delta T. Due to temperature change, this much strain is developed in the rod, so 0 and alpha delta T is a correct answer। क्योंकि अल्फा की डेफिनेशन क्या होती है? चेंज इन लेंथ, सॉरी, अल्फा इज गिवन एज change in length per unit original length per degree rise in temperature. So delta L by L, that is thermal strain, is nothing but alpha into delta T. So it comes from the definition of alpha. A is the correct answer for question number 2. Coming to the question number 3, the effective length of the column with the ideal boundary condition as shown in the case 1, case 2 and case 3 है। तो इन तीनों केस के लिए इफेक्टिव लेंथ क्या होगी? तो बोथ साइड इसके हिंज है, तो LE इज नथिंग बट इक्वल टू L। इसके बोथ साइड क्या है, मतलब एक साइड फिक्स है और एक साइड फ्री है, तो इसका LE इज इक्वल टू 2L। ये दोनों साइड फिक्स है, तो LE इज इक्वल टू L/2, L2L L/2, D इज द करेक्ट आंसर। और at a point in a stress body, sum of normal stresses acting on a perpendicular face of an arbitrary oriented plane stress element is always, suppose it is something like this, sigma x, sigma y, sigma x, y। यही पॉइंट पे किसी दूसरे प्लेन पर, मतलब किसी दूसरी ओरिएंटेशन पर sigma dash, sigma y dash, suppose these are normal मतलब normal stresses and they are acting at a perpendicular, मतलब usually perpendicular plane। तो क्या बोल रहा है वो? किसी भी आर्बिटरी ओरिएंटेड प्लेन पर इनका सम, दैट इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स डैश प्लस सिग्मा वाई डैश, ये क्या होता है? इक्वल होता है और इट इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ द एलिमेंट। सो देयर सम इज कांस्टेंट एंड इट इज नोन एज स्ट्रेस इनवेरिएंट, फर्स्ट स्ट्रेस इनवेरिएंट बोलते हैं इसको, ठीक है। So it is constant and independent of angle of orientation, that's why it is known as stress invariant। Coming to the next question, so principal stress on a plane stress element are shown in the figure। principal stress दिया है, तो sigma 1 is 100, sigma 2 is -100, sigma 3 is 0 because plane stress। तो maximum shear stress is tau max is maximum out of sigma 1 minus sigma 2 by 2, sigma 2 minus sigma 3 by 2, sigma 3 minus sigma 1 by 2। तो इन तीनों का मैक्सिमम क्या आएगा? मैक्सिमम आउट ऑफ sigma 1 minus sigma 2 is 200 by 2, sigma 2 minus sigma 3 is 100 by 2, it is also 100 by 2, so इनका मैक्सिमम आ जाएगा 100। so maximum shear stress is nothing but 100, so for this 100 is the correct answer। Coming to the next question, एक रिजिड रॉड दिया है L शेप ब्रैकेट एज शोन इन द फिगर एंड इट इज फिक्स एट अ वॉल, ओके,
एंड फोर्स एफ इज अप्लाइड एट अ पॉइंट ए। तो ये फोर्स यहाँ पे अप्लाई किए, इसको एक्स वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इट इज एफ कॉस थीटा, एंड इसका वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा एफ साइन थीटा। द पॉइंट बी एक्सपीरियंसेस अ मैक्सिमम क्लॉकवाइज मूवमेंट व्हेन द इंक्लिनेशन थीटा। तो इस पॉइंट बी पर जो मोमेंट होगा वो मैक्सिमम किस थीटा के लिए होगा, मतलब ठीक है, फॉर विच थीटा द मोमेंट एट पॉइंट बी विल बी मैक्सिमम, दैट दे आर आस्किंग। सो पहले एफ कॉस थीटा की वजह से कितना मोमेंट आएगा पॉइंट बी पर, तो पहले वो निकालते हैं। तो पॉइंट बी पर शिफ्ट करेंगे इस फोर्स को, तो कैसी आएगी, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, मतलब ये डायरेक्शन वाला फोर्स, ये कैसा मोमेंट बना रहे हैं, लाइक दिस, सो इट इज क्लॉकवाइज। तो एफ कॉस थीटा की वजह से क्या मोमेंट आएगा, इट इज एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 0.3। तो ये तो हो गया एफ कॉस थीटा की वजह से। अभी बचा क्या, एफ साइन थीटा। सिमिलर वैसे ही करेंगे, एफ साइन थीटा इक्वल एंड अपोजिट बी पर अप्लाई करेंगे। और ये वाला फोर्स अपवर्ड फोर्स और ये डाउनवर्ड फोर्स कैसा मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, लाइक दिस, दिस इज क्लॉकवाइज। तो एफ साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 0.4। तो ये हो गया एफ के वजह से पॉइंट बी पर एक्ट करने वाला मोमेंट। तो नेट क्या आ जाएगा, ये भी क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज है, तो नेट मोमेंट विल बी एफ कॉस थीटा इंटू 0.3 प्लस एफ साइन थीटा इंटू 0.4। मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, डी एम बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0। तो एफ कॉस थीटा इंटू डिफरेंशिएट करने के बाद इसका कुछ ऐसे आ जाएगा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, सो इट इज माइनस एफ साइन थीटा इंटू 0.3 प्लस एफ कॉस थीटा इंटू 0.4 इज इक्वल टू 0। तो ये 0.3 टाइम साइन थीटा is equal to 0.4 टाइम cos थीटा। sin थीटा by cos थीटा is nothing but tan थीटा, it is equal to 4/3। आफ्टर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आता है हमारा 53.13 डिग्री। डिग्रीज में पूछा उन्होंने, तो दिस इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये मैक्सिमम ही क्यों होगा, तो वो मतलब उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे आप, डी स्क्वायर एम बाई डी थीटा स्क्वायर, वो आएगा आपका व्हाट वी से लेस देन 0 आएगा फॉर थीटा इज इक्वल टू 53.13। ठीक है, तो इस थीटा की वैल्यू के लिए ये जो डेरिवेटिव आएगा वो नेगेटिव आएगा, सेकंड डेरिवेटिव, दैट्स व्हाई एम इज मैक्सिमम एट दिस थीटा। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन पे आते हैं हम। कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ 1 मीटर, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 210 गीगापास्कल एंड एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है और कॉन्सेंट्रेटेड मास कैरी कर रहा है वन ऑफ इट्स एंड, इट्स लाइक दिस, सपोज दिस इज कैंटिलीवर बीम एंड इट्स कैरिंग अ मास m हैविंग लेंथ l। तो बाय आइडियलाइजिंग एट इट एज सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो बीम का कोई मास नहीं मान रहे हम और उसको सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम मान रहे हैं। नेग्लेक्टिंग मास ऑफ बीम द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्मॉल ट्रांसवर्स ऑसिलेशन, तो स्मॉल ट्रांसवर्स ऑसिलेशन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो पूछ रहे हैं। तो हमें पता है कि ट्रांसफर वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, दैट इज ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाई डेल्टा स्टैटिक। तो अगर हमने डेल्टा स्टैटिक निकाल लिया इस बीम के लिए तो हमारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। तो डेल्टा स्टैटिक क्या होता है फॉर सच टाइप ऑफ कैंटिलीवर बीम, इट इज WL³ बाई 3 है। अगर कैंटिलीवर बीम पर एंड पर पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है तो उसके लिए डिफ्लेक्शन कितना आता है एट फ्री एंड, इट इज WL³ बाई 3 है, तो इट इज mg L³ बाई 3 है। m मालूम है, g पता है, g की वैल्यू हमें 9.81 लेनी है यहाँ पर, l भी पता है, e हो रहा है, सब पता है। तो डेल्टा स्टैटिक की कोई वैल्यू आएगी वो ओमेगा एन में मतलब यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, दैट इज डेल्टा स्टैटिक। तो यहाँ सब्सटीट्यूट करने के बाद ओमेगा एन की वैल्यू आती है फॉर क्वेश्चन नंबर 7, इट इज 27.4954 रेडियन पर सेकंड। दिस इज द करेक्ट आंसर। Coming to the next question. For a typical grade of steel, the value of modulus of elasticity E is 208 GPa and Poisson's ratio दिया है उन्होंने 0.3
मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू पूछी है, दैट इज शेयर मॉड्यूलस। तो हमें रिलेशन मालूम है ये E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, बहुत बार यूज़ किया है हमने। तो इट इज 208 2G 1.3, सो G विल कम आउट एज 80 GPa। सो 80 GPa is the correct answer for question number 8. Coming to the next question. When a test is performed on a metallic specimen of a diameter 8 mm, dia is given as 8 mm, gauge length is given as 50 mm, tensile load when P reaches a value of, ये जब P की वैल्यू 20 किलो न्यूटन हो जाएगी तो गेज मार्क इंक्रीजेस बाय 0.09 mm। तो डिफ्लेक्शन दिया है उन्होंने 0.09 mm। ये गेज मार्क 0.09 mm से इंक्रीज कर गया, मतलब वह लेंथ बढ़ गई ना। सो दिस इज नथिंग बट डिफ्लेक्शन इन mm। If the sample remains within elastic limits, so Hooke's law is valid. The modulus of elasticity of the test metal is, simple formula for axial loading, that is PL by AE. So delta is 0.09 is equal to P is 20 into 10 power 3, L is 50, it is pi by 4 into D square is 64 into E. तो E की वैल्यू आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, it is 221.048, it's in GPa, ठीक है। तो 221.048 is the correct answer for this question. Coming to the next question, ये थोड़ा सा लेंदी है। क्या बोला उन्होंने, बीम ABC is subjected to load P at its free end as shown in the figure and flexural rigidity of beam is EI, vertical support reaction at point B is, तो कुछ इस तरीके से दिया है। सपोज दिस इज द बीम लाइक दिस, कैंटिलीवर बीम, सपोर्ट रिएक्शन B पर ना, सो इट्स से RB एंड ये P, सपोर्ट इज एट डिस्टेंस L/2, इट इज एट ए डिस्टेंस L, और उन्होंने RB की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो RB पर क्या होगा, डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 है, बिकॉज वहाँ पर क्या है, सपोर्ट है, ठीक है। और ये कैंटिलीवर बीम है, तो हम सिंपल ऐसे क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशन से इसको निकाल नहीं सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंपैटिबिलिटी यूज़ करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले डिफ्लेक्शन निकालना पड़ेगा पॉइंट बी पर, मतलब डिफ्लेक्शन कर्व का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, और वहाँ पर एट पॉइंट बी हम 0 वैल्यू पुट कर देंगे डिफ्लेक्शन की। तो पॉइंट बी पर जब डिफ्लेक्शन की वैल्यू 0 आ गई तो वहाँ से हमें RB की वैल्यू मिल जाएगी। तो सपोज वी आर मेजरिंग x फ्रॉम हियर एंड यूजिंग मैक्यूलेज मेथड, डबल इंटीग्रेशन मेथड भी बोलते हैं। तो एट ए सेक्शन और एट ए डिस्टेंस x हम मोमेंट निकालेंगे, ठीक है। तो मैक्यूलेज मेथड में क्या होता है, सबसे पहले कि कोई भी मतलब एक लास्ट एंड पर निकालना पड़ता है मोमेंट की वैल्यू, ठीक है। कैलकुलेट मोमेंट एट लास्ट एंड, एंड जो क्वांटिटीज है, जैसे सपोज मैं करके ही दिखाता हूँ रादर देन स्टेप मेंशन करने से अच्छा। तो मोमेंट कैसे आएगा, M will come out as, it is minus P into X. Why it is, why, because it is, what we say, it is hogging, and plus RB X minus L/2। तो ये कैसे हो गया, किसी भी मतलब x डिस्टेंस पर एक सेक्शन लेना है, ठीक है, और वहाँ पर, और मोस्टली वो बीम के एंड में लेना है, जहाँ पर बीम मोस्टली खत्म हो रही है और उसके पहले ही सारे लोड एक्ट कर रहे हैं, उसके बाद में कोई लोड एक्ट नहीं कर रहा है। ऐसे किसी डिस्टेंस पर एक सेक्शन लेना है x, और वो सेक्शन लेने के बाद क्या करना है, वहाँ पर मोमेंट निकालना है जैसे हमने निकाला, और कोई मतलब क्वांटिटी ऐसे फ्री एंड से कुछ डिस्टेंस हट के एक्ट कर रही है, लाइक दिस, मतलब RB L/2 डिस्टेंस अवे है फ्री एंड से। तो जब हम इस सेक्शन पर मोमेंट की वैल्यू निकालेंगे फॉर RB, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, x माइनस L/2, है बिकॉज दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट x माइनस L/2, और उसको हमें इस स्पेशल टाइप के ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। उसका सिग्निफिकेंस हमें पता चलेगा, और जब हम
इस क्वांटिटी को स्पेशल ब्रैकेट में लिख रहे हैं तो क्या होगा, अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे मोमेंट को डिफ्लेक्शन निकालते टाइम पे, तो इस क्वांटिटी को ओपन नहीं करना है हमें, ऐसे पूरा एज अ सिंगल एंटिटी इसको इंटीग्रेट करना है। और अगर इस ब्रैकेट की क्वांटिटी जीरो होगी तो ड्रॉप अपने आप हो जाएगा, और अगर ये निगेटिव हो रही है तो इसको भी ड्रॉप कर देना है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। तो डिफ्लेक्शन का इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारा, y डबल डैश इज इक्वल टू m बाई ई आई, इज y डबल डैश ई आई इज इक्वल टू m, दैट इज इक्वल टू माइनस पी एक्स प्लस आर बी एक्स माइनस एल बाई टू। तो इट इज y डबल डैश ई आई, बार लिख लिया। अभी इसको एक इंटीग्रेट करेंगे एक बार इस इक्वेशन को, तो क्या आ जाएगा, इट इज y डैश ई आई इज इक्वल टू माइनस पी एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस आर बी एक्स माइनस एल बाई टू का होल स्क्वायर बाई टू प्लस सी वन, ठीक है। तो इस टाइप से इंटीग्रेट करना है इसको, एंड सी वन इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अभी एट एक्स इक्वल टू एल क्या हो रहा है, स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। वाई, बिकॉज इट इज अ फिक्स एंड, और फिक्स एंड प्लस स्लोप जीरो होता है फॉर कैंटिलीवर बीम। तो इट इज जीरो एट एक्स इक्वल टू एल, सो यहाँ एक्स की वैल्यू एल रखेंगे हम, दैट इज पी एल स्क्वायर बाई टू प्लस आर बी इंटू एल बाई टू का होल स्क्वायर बाई टू। ये पॉजिटिव आ रही है क्वांटिटी एल रखने के बाद, तो ये ड्रॉप नहीं होगी, एज इट इज रहेगी एट इज सी वन। इट इज माइनस पी एल स्क्वायर बाई टू प्लस आर बी एल स्क्वायर बाय 8 plus C1 is equal to 0. So C1 will come out as PL square by 2 minus RB L square by 8. तो ये आ गई C1 की वैल्यू, हमें मिल गया C1। अभी नेक्स्ट क्या है हमारा, y डैश का इक्वेशन है, अभी हमें y डबल डैश निकालना है। तो पहले हम y डैश का इक्वेशन लिख लेते हैं, y डैश ई आई इज इक्वल टू माइनस पी एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस आर बी एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर बाई टू, आर बी एक्स माइनस एल बाई टू का होल स्क्वायर बाई टू प्लस सी वन। सी वन की वैल्यू निकाल ली हमने, बट ये स्पेस ज़्यादा हो जाएगा, कंजस्टेड हो जाएगा, इसलिए अभी पुट नहीं कर रहे हैं, बाद में करता है। एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो ये डिफ्लेक्शन का इक्वेशन आ जाएगा, दैट इज डिफ्लेक्शन कर्व का। तो इट इज माइनस पी एक्स क्यूब बाय 6 प्लस आर बी एक्स माइनस एल बाई टू का होल क्यूब बाय 6 प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू। तो एट एक्स इक्वल टू एल वाई इज अगेन जीरो, बिकॉज एक्स इक्वल टू एल, एल हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं और एक्स इक्वल टू एल पर फिक्स एंड है, फिक्स एंड पर डिफ्लेक्शन जीरो होता है। तो इट इज जीरो माइनस पी एल क्यूब बाय 6 प्लस आर बी एंड इट इज एल बाई टू का होल क्यूब बाय 6। C1 की वैल्यू ऊपर निकाली है हमने, क्या आई है, इट इज पी एल स्क्वायर बाई टू माइनस आर बी एल स्क्वायर बाई 8 एंड एक्स की वैल्यू एल प्लस सी टू। तो इट इज जीरो इज इक्वल टू माइनस पी एल क्यूब बाय 6 प्लस आर बी एल क्यूब 8 6 48 प्लस पी एल क्यूब बाय 2 माइनस आर बी एल क्यूब बाय 8 प्लस सी टू। सॉल्व करेंगे इसको तो इट इज 6 8 48, 6 6 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, इट इज 3 2 6, 3 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा 2 पी एल क्यूब बाय 6 एंड इट इज माइनस 5 आर बी एल क्यूब बाय 48 प्लस सी टू। तो C2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5 आर बी एल क्यूब बाय 48 माइनस 2, इससे इट इज पी एल क्यूब बाय 6 इज 3 पी एल क्यूब, 2 3 6, सो इट इज पी एल क्यूब बाय 3। तो ये आ गई हमारी C2 की वैल्यू। तो हमारा C1 आ गया और C2 आ गया। तो अभी C1 C2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, पहले इक्वेशन लिख देते हैं, वाई ई आई इज, तो इट इज वाई ई आई इज इक्वल टू माइनस
पी एक्स क्यूब बाय 6, ये हो गया पहला टर्म. देन इट इज आर बी एक्स माइनस एल बाय 2 का होल क्यूब बाय 6, एक्स माइनस एल बाय 2 होल क्यूब बाय 6 प्लस C1 की वैल्यू क्या आई थी हमारी, इट इज पी एल स्क्वायर बाय 2 माइनस आर बी एल स्क्वायर बाय 8, पी एल स्क्वायर बाय 2 माइनस आर बी एल स्क्वायर बाय 8 टाइम्स एक्स प्लस C2 की वैल्यू ऊपर आई है हमारी 5 आर बी एल क्यूब बाय 48 माइनस पी एल क्यूब बाय 3. एंड वी नो वाई एट एक्स इक्वल टू एल बाय 2 बिकॉज ये एल बाय 2 पे है ना सपोर्ट, तो यहाँ से एक्स मेजर कर रहे हैं हम, तो एक्स एट एल बाय 2 इज ऑल्सो 0, सो डिफ्लेक्शन एट एल बाय 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 0. तो यहाँ से क्या आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, इट इज 0 इक्वल टू माइनस पी एल क्यूब बाय 6, सॉरी पी एल बाय 2 क्यूब बाय 6 माइनस पी एल बाय 2 का होल क्यूब बाय 6 प्लस ये एल बाय 2 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा. एंड इट इज पी एल स्क्वायर बाय 2 माइनस आर बी एल स्क्वायर बाय 8 टाइम्स एल बाय 2 प्लस 5 आर बी एल क्यूब बाय 48 माइनस पी एल क्यूब बाय 3 इक्वल टू 0 माइनस पी एल क्यूब 8 6 48 प्लस पी एल क्यूब बाय 4 माइनस आर बी एल क्यूब बाय 16 प्लस 5 आर बी एल क्यूब बाय 48 माइनस पी एल क्यूब बाय 3. यहाँ पर पी वाले टर्म एक साथ ला लेते हैं और क्या बोलते हैं आर बी वाले टर्म एक साथ ला लेते हैं, तो इट इज पी बाय 48 माइनस 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 प्लस प्लस पी बाय 3 इधर साइड ला लिए माइनस पी बाय 4, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा. इट इज 5 बाय 48 माइनस 1 बाय 16 टाइम्स आर बी, ये दो आर बी वाले टर्म इधर साइड ही रहे, ये कैसे आ जाएगा, इट इज पी 1 बाय 48 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 1 बाय 12, इट इज इक्वल टू 5 बाय 48 माइनस 3 बाय 48. वाई बिकॉज 3 16 जा 48, ऑटोमेटिकली वही आ जाएगा ये. सो इट इज 12 4 जा 48, सो इट इज 4, सो इट्स 5 पी बाय 48 and it's 2 RB by 48. So RB will come out as 5 by 2 times P. 5 by 2 times P is a correct answer. So B is a correct answer for this. Coming to the next question. So question 11 क्या है? A horizontal effort P is applied to raise a block of weight W on a rough surface, okay, at an incline theta with a horizontal. If mu s is the coefficient of static friction between the block and the surface, the minimum effort P required to impede the upward motion. Block is trying to move, just trying to impede upward, so friction will act downward like this, mu s into n, where n is a normal reaction. P को resolve करेंगे हम along the plane. Suppose this is x axis, this is y axis, so it will come out as P cos theta. This is theta, so this is also theta. And it is P sin theta. Similarly, block ऐसा दिया है हमें, mg will act like this, so this angle will be theta, so it is mg cos of theta, and mg is nothing but w, so it is w cos theta, so here will be w sin theta. हमारी FBD आ जाएगी ब्लॉक की कुछ इस तरीके से, इधर डायरेक्शन में लगेगा w cos थीटा और इधर डायरेक्शन में लगेगा w sin थीटा. तो FBD कैसी आएगी ब्लॉक की, इट इज P cos थीटा माइनस w sin थीटा, इधर डायरेक्शन में w sin थीटा, इधर n और इधर डायरेक्शन में mu s टाइम n, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स. Why it is equal to mu s into n? Because it is in limiting case. लिमिटिंग केस में फ्रिक्शन की वैल्यू mu s into n होती है, बिकॉज ब्लॉक जस्ट इम्पेंड करने वाला है, ठीक है. एंड इट इज P sin थीटा, ये वेट का एक कंपोनेंट आएगा नीचे, दैट इज W into
कॉस ऑफ थीटा। एक्स और वाई डायरेक्शन हमने बता दी है कौन कौन से है। अभी क्या रहेगा, फोर्स बैलेंस। तो पहले ये y है, ये x है, along the plane x perpendicular to the plane y. So summation fy is 0. So from here we will get p sin theta minus p sin theta minus w cos theta is nothing but equal to plus n is equal to 0. N will come out as p sin theta plus w cos theta. ये तो आ गया n की वैल्यू। अभी n आ गया हमारा, तो अभी सेकंड इक्वेशन बचा हमारा x डायरेक्शन में, दैट इज p cos theta summation f x 0. p cos theta is in this direction minus mu s into n minus w sin theta is equal to 0. So p cos theta is equal to mu s n plus w into sin theta. ये आ गया सेकंड इक्वेशन। अभी सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन से n की वैल्यू पुट करेंगे हम, तो इट इज p cos theta mu s, n is p sin theta plus mu s w cosine of theta plus w sin of theta। ये वाले टर्म को इधर लेके जाएंगे तो इट विल कम आउट एज p cos theta minus mu s sin theta is equal to w mu s cos theta plus sin theta। ये इक्वेशन आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, बस हमें फाइनल फॉर्म में लाना है। तो p will come out as w mu s cos theta plus sin theta upon cos theta minus mu s sin theta। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos theta से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, mu s plus tan theta 1 minus mu s tan theta। So B is the correct answer for this question. I hope you got it. It is impending upward, that's why friction is acting in downward direction, और impend कर रहा है इसलिए उसकी वैल्यू mu s into n के बराबर। ठीक है। Coming to the question number 12. 3 राउंड बार दिए है ऑफ द सेम मटेरियल, इक्वल लेंथ एंड डिफरेंट क्रॉस सेक्शन डायमेंशन एज शोन इन द फिगर। All the bar are clamped at upper end, that is they are fixed at upper end, and a concentrated load is applied at the lower end of the bar. If the elastic strain energy stored in the bar in the case 1 is U1, then strain energy stored in the case 2 and 3 is। तो 1 में दिया है U1, तो U1 क्या हो जाएगी, U1 is equal to P square L by 2A and P square L by 2E, A is pi by 4 D square। तो ये दो हो गई U1 की वैल्यू। ठीक है। अभी U2 क्या हो जाएगा, U2 is this is 1, हाँ this is से A B C, 3 सेगमेंट में डिवाइड है, तो इट इज UA प्लस UB प्लस UC। तो UA में लोड कितना लग रहा है, P, तो इट इज P, L is L by 4, L square by 2। Let me make it on different page। यहाँ पे भी हो जाएगा ये। तो U2 is UA प्लस UB प्लस UC। तो UA क्या हो गया, इट इज P स्क्वायर L बाय, दैट इज L की वैल्यू है यहाँ पे L बाय 4, P स्क्वायर L बाय 2 E इंटू A की वैल्यू है यहाँ पे पाई बाय 4 इंटू 2D स्क्वायर। सो ये क्या हो गया, इट इज P स्क्वायर L बाय 2E पाई बाय 4D स्क्वायर। तो यहाँ क्या बच गया, इट इज 1 बाय 4 टाइम्स 2 2 जा 4, डाया का 4 बचा ना यहाँ पर। तो ये इसकी वैल्यू तो होती है U1 एंड इट इज 1 बाय 4, दैट इज U1 बाय 16। तो इसमें कितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगी, दैट इज इस पार्ट में होगी U1 बाय 16। सिमिलरली हम इसके लिए करेंगे, ऊपर वाले के लिए। ऊपर वाले में भी लोड क्या लग रहा है, सेम P,
यहाँ पे कोई भी एक सेक्शन लेंगे हम तो लोड कितना लगेगा P. सो यू बी इज P स्क्वायर L बाय 2 and L is L by 2. A is pi by 4D square into E. So it is P square L by 2 pi by 4D square into E times 1 by 2. तो ये आ जाएगा U1 by 2 एंड ऊपर वाला भी सिमिलर इसके जैसा ही है ना, तो ये आ जाएगा U1 by 16. तो U1 by 16 into 2 plus U1 by 2 is nothing but equal to U2. और इसको सॉल्व करेंगे हम तो U1 by 8 plus U1 by 2 and it is 4 into 4. So it is 5 U1 by 8. तो कितना आ जाएगा U1 के टर्म में? it is 5 U1 by 8. It is a strain energy stored in a case 2. सिमिलरली केस 3 के लिए सॉल्व करेंगे तो सिमिलर आर्गुमेंट फॉलो करके, दैट इज A B C तीनों में लोड सेम ही एक्ट कर रहा है. इस सेक्शन पे भी P, इस सेक्शन पे भी P, इस सेक्शन पे भी P, लोड सेम है, लेंथ और क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है. तो यही आर्गुमेंट लेके सॉल्व करेंगे तो इसके लिए भी आंसर आ जाएगा 5 U1 by 8. सॉल्व करके देख लेना, वही आता है. तो D इज द करेक्ट आंसर फॉर इट. Moving to the next question. A rigid uniform bar of mass m, length L, center of gravity is at G. So weight will act from this. So it is mg sin theta because this is theta. So it is mg cosine of theta. Rod is given a small angular displacement theta. So for small angular displacement, sin theta is nearly equal to theta. And in a counterclockwise direction. So like this, इसको ऐसे डिस्प्लेस किया हमने, और ये जो देन क्या करना है, हमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालनी है. तो न्यूटन लॉ लगाएंगे हम, दैट इज समेशन एम नेट अबाउट पॉइंट से O इज I अबाउट पॉइंट O इंटू अल्फा ऑफ बॉडी, दैट इज रॉड. नेट एंगुलर मोमेंटम of मतलब net moment about point O is given by mg sin theta is nearly equal to theta and its direction is opposite to disturbance, so minus, and is at a distance of L by 2. और इसके अलावा और कोई मोमेंट नहीं है, and it is equal to IO मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट पॉइंट O. तो हमें पता है कि एक फिक्स एंड के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय ml स्क्वायर बाय 3. पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने से आ जाता है, बिकॉज सेंटर के अबाउट होता है ml स्क्वायर बाय 12 एंड m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज L बाय 2 का होल स्क्वायर. तो इट विल कम आउट एज ml स्क्वायर बाय 3. ठीक है, तो इट इज फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम. इट इज अबाउट IO, दैट इज I एट एनी एक्सिस, I अबाउट एनी एक्सिस O इज I अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड दैट एक्सिस. ठीक है, तो ये होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम. ये अप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो इसको सॉल्व करने लेंगे हम, तो ये आएगा लाइक दिस, mg L by 2 times theta is equal to 0. तो theta double dot is equal to 3 by 2 GL, theta is equal to 0. Comparing it with standard equation, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी हमारी अंडर रूट 3 by 2 G by L. C is the correct answer for this. I hope you got it. For 13, C is the correct answer. एक सिलेंड्रिकल मेंबर दिया है, मेड ऑफ डक्टाइल मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू प्योर टॉर्शन. ठीक है, एज शोन इन द फिगर द फेल्यूर प्लेन फॉर अ डक्टाइल मटेरियल एज पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी. तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के हिसाब से डक्टाइल मटेरियल कब फेल होता है? जब टाउ मैक्स इन अ मटेरियल रीचेस टाउ यील्ड. ठीक है, तो मतलब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज द क्राइटेरिया फॉर अ फेल्यूर. तो टॉर्शन के केस में कोई एक प्लेन लेते हैं हम सरफेस पे, तो मैक्सिमम मतलब वहाँ पर शियर स्ट्रेस क्या होती है? मैक्सिमम. ठीक है, तो शियर स्ट्रेस मैक्सिमम किस प्लेन पे है? इस प्लेन पे है. कोई एक हमने ऐसा एलिमेंट लिया है, तो यहाँ पर एक्ट कर रही है ना शियर स्ट्रेस, दैट इज व्हाट वी से, सपोज दिस इज द क्रॉस सेक्शन और हम ऐसे ट्विस्ट कर रहे हैं, तो इस क्रॉस सेक्शन पर मतलब इस यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले रहे हैं, तो यहाँ पर
मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एक्ट कर रही है, तो फेल्यूर होने के चांसेस इस प्लेन पर ज़्यादा है, बिकॉज दिस इज डक्टाइल मटेरियल एंड डक्टाइल मटेरियल फेल ड्यू टू शियर, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज एक्टिंग एट दिस प्लेन, ठीक है, इन केस ऑफ टॉर्शन. सो ऑप्शन 3 इज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फॉर दिस. बाकी अगर ब्रिटल मटेरियल होता तो ये 45 डिग्री पर फेल होता. वाई? बिकॉज 45 डिग्री पर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट करता था फॉर प्योर टॉर्शन, लेकिन ये ब्रिटल मटेरियल नहीं है, ये डक्टाइल है. दिस इज फॉर ब्रिटल एंड दिस इज फॉर डक्टाइल. तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो एक बीम दे रखा है उन्होंने, सिंपली सपोर्टेड of a length L is subjected to couple M naught at a distance A from support A. Which among the following option shown is a correct shear force diagram of the beam? Wait a minute. तो सबसे पहले हम रिएक्शन निकाल लेंगे. सपोज दिस इज RA, दिस इज RB. तो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट B इज 0. तो RA क्रॉस L ये ऐसा मोमेंट आएगा इसकी वजह से, और गिवन मोमेंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन. तो आर ए इज एम नॉट बाई एल. तो आर ए जब एम नॉट बाई एल है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो आर बी की वैल्यू आ जाएगी एम नॉट बाई एल डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ये कहाँ से आएगा? व्हेन वी विल अप्लाई समेशन एफ बाई 0. तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 0 एंड आर बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर ए. ठीक है, तो यहाँ से आर बी की वैल्यू आ जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में. और शियर फोर्स डायग्राम के लिए साइन कन्वेंशन दे रखा है उन्होंने नीचे. दैट इज मतलब अगर इधर से जा रहे हैं या कहीं से भी जा रहे हैं, अगर शियर फोर्स क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही है तो इट इज टेकन एज पॉजिटिव. तो ये वाली शियर फोर्स है दैट इज एम नॉट बाई एल इज ट्राइंग टू प्रोड्यूस क्लॉकवाइज मोमेंट. ठीक है, एंड इट्स वैल्यू इज सडनली, मतलब ये पॉइंट लोड है तो यहाँ पर सडन राइज होगा वैल्यू में, दैट इज एम नॉट बाई एल. तो ये तो हो गया. एंड बाद में थ्रू आउट द बीम शियर फोर्स इज रिमेनिंग कांस्टेंट, एंड यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन में एम नॉट बाई एल लग रहा है तो यहाँ पर 0 हो जाएगी बाद में. ठीक है, तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर SFD. तो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. बाकी सारों में से कोई भी मैच नहीं कर रहा है. कमिंग टू द 16th क्वेश्चन. एक सर्कुलर शाफ्ट दिया है ABC ऑफ डायमीटर D, लेंथ L, फिक्स एट एंड A पर फिक्स है. इट इज सब्जेक्टेड टू द ट्विस्टिंग मूवमेंट एट पॉइंट B एंड C लाइक दिस. द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ ट्विस्ट एट पॉइंट B एंड C इज, सो थीटा B बाई थीटा C इस क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है हमें. तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ट्विस्टिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे हम. तो ये जो ट्विस्टिंग मोमेंट है, अगर हम राइट हैंड ले रहे हैं लुकिंग फ्रॉम दिस साइड, अगर राइट हैंड थंब रूल यूज कर रहे हैं तो इस ट्विस्टिंग मोमेंट के लिए थंब क्या हो रहा है, क्रॉस सेक्शन के अंदर जा रहा है. ठीक है, तो दिस ट्विस्टिंग मोमेंट इज नेगेटिव एंड इट्स वैल्यू इज T. सो इसको प्लॉट करेंगे हम तो ये कैसा आएगा, इट इज T, और इसकी वैल्यू कहाँ तक, सेक्शन B तक, दैट इज पॉइंट B तक T है. और बाद में यहाँ पर और एक T ऐड हो रहा है, तो इधर कैसा, मतलब ये वाला भी T इनसाइड द क्रॉस सेक्शन जा रहा है. ठीक है, इट्स गोइंग लाइक दिस इनटू द क्रॉस सेक्शन, सो इट विल गेट एडेड विद दिस ट्विस्टिंग मोमेंट. तो यहाँ पर हो जाएगा सडन राइज नेगेटिव डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू हो जाएगी T, और वो बाद में कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट डिस्टेंस L/2. तो एंड पर हो जाएगा इसकी वैल्यू 2T. इट इज C, इट इज B, इट इज A. तो थीटा B बाई थीटा C निकालना है. तो थीटा B विद रिस्पेक्ट टू A अपॉन थीटा C विद रिस्पेक्ट टू A. तो इसको दो पार्ट में करेंगे हम, दैट इज थीटा BA अपॉन थीटा CA इज नथिंग बट थीटा BA प्लस थीटा BC. ठीक है, CA में मतलब ये दो सेक्शन आ रहे हैं ना C और A के बीच में, तो ये दो ट्विस्टिंग मोमेंट का जो नेट रहेगा अलजेब्रिक सम, दैट विल बी नथिंग बट इक्वल टू ट्विस्टिंग मोमेंट एट, सॉरी दैट विल बी नथिंग बट एंगुलर ट्विस्ट एट पॉइंट C. तो ये हो जाएगा थीटा, और ट्विस्टिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं, इट इज नथिंग बट TL/GJ. तो थीटा BA इज नथिंग बट ट्विस्टिंग मोमेंट एट पॉइंट B इज 2T,
एंड लेंथ कितनी है बी से लेके ए के बीच में, इट इज़ L/2 एंड जी जे एज इट इज़, और बी ए का ऊपर ही निकाल लिया हमने 2T L/2 बाई जी जे, प्लस बी सी का क्या आ जाएगा, बी और सी मतलब इसके बीच में डिस्टिंग मोमेंट कितना लग रहा है, इट इज़ T एंड इट इज़ कांस्टेंट, और L कितना है, L इज़ नथिंग बट L/2 बाई जी जे। तो इसको सॉल्व करेंगे, जी जे विल गेट कैंसल, T L/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 + 2 + 1 दैट इज़ 2/3, 1/3/2 दैट इज़ 1/1.5। तो D इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ये थीटा हम एक्चुअली ऐसे निकालते हैं, दैट इज़ इंटीग्रल T dx बाई जी जे, बट यहाँ T थ्रू मतलब जो सेक्शन देख रहे हैं हम BC/BA वहाँ पर T कांस्टेंट रह रहा है, इसलिए ये सारा कुछ इंटीग्रेशन के बाहर आ जा रहा है, तो इट इज़ नॉर्मली बिकमिंग TL/GJ। I hope it is clear to you. Coming to the next question. तो सर्कुलर स्टील बार दिया है ऑफ अ डायमीटर 10 mm, तो ये जो बार है उसका डाया है 10 mm, is bent into a shape as shown in the figure and lies in a XZ plane. XZ प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है, ये Z है ये X है, मतलब इस प्लेन में दैट इज हॉरिजॉन्टल, तो इस प्लेन में लाई कर रहा है वो, और उन्होंने दिए यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील दैट इज सिग्मा y इज गिवन एज 200 MPa and neglecting the effect of transfer shear, the load P required to initiate yielding as per maximum shear stress theory. तो maximum shear stress theory के हिसाब से लोड P की वैल्यू कितनी आनी चाहिए टू इनिशिएट द यील्डिंग। तो सबसे पहले नाम दे देते थोड़ा सा, से इट इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। ए बी सेक्शन में सिर्फ एक्सियल लोड एक्ट कर रहा है, तो स्ट्रेसेस क्या हो जाएगी, डायरेक्ट स्ट्रेस विल बी P/4 पाई d स्क्वायर एंड इट इज 4P by pi, d स्क्वायर इज नथिंग बट 10 का स्क्वायर इट इज 100, तो इट विल कम आउट एज P/25 पाई। तो ये तो हो गया किसके वजह से, क्या बोलते हैं उसको, ए बी सेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से, तो इट इज P/25 एंड ये हो गया। यहाँ पर सिर्फ और से एक ही स्ट्रेस एक्ट कर रही है, सो इट इज मतलब अ प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज नथिंग बट सिग्मा d/2 बिकॉज ओनली वन स्ट्रेस इज एक्टिंग। वो ऊपर जो फॉर्मूला डिस्कस किया था वो यूज करके भी निकालेंगे तो यही आएगा आंसर, एंड इट इज नथिंग बट इक्वल टू टाउ परमिसिबल और टाउ यील्ड। तो सिग्मा d/2 और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के लिए टाउ यील्ड कितना आता है, इट इज सिग्मा y/2, तो सिग्मा d मस्ट बी लेस देन sigma y/2 that is sigma y, 2 get cancel, so it is P/25 pi is less than what we say, it is 200। तो यहाँ से P की वैल्यू आएगी, लेट मी कैलकुलेट, इट इज 200 इंटू 25 इंटू पाई, तो यहाँ से P की वैल्यू आ रही है, इट मस्ट बी लेस देन 15707.96 न्यूटन। तो ये तो आ रही है डायरेक्ट स्ट्रेस की वजह से ए बी सेक्शन में। अभी बात करते हैं BC सेक्शन में क्या होगा, मतलब BC लेंथ में क्या होगा, BC सेक्शन नहीं है, BC लेंथ में क्या होगा। तो इसका लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से पास कर रहा है, तो हम अगर पॉइंट C पर शिफ्ट कर दे इसको, इस लोड को, तो ये कैसा दिखेगा, इट इज लाइक दिस P एंड इट इज P, तो P एंड P इज प्रोड्यूसिंग, ये वाला P और ये वाला P, इट इज प्रोड्यूसिंग मोमेंट, एंड मोमेंट की वैल्यू क्या है, इट इज P इंटू 100 न्यूटन mm से, ठीक है। तो ये मोमेंट की वैल्यू आ गई, और ये सर्कुलर सेक्शन है, तो यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस की वजह से नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या आएगी, 32 m/πd³। सेक्शन C पर कोई भी ऐसा हम पॉइंट लेते हैं आउटर, फिर इट इज सेक्शन C से, और ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया, तो कोई भी एक आउटर पॉइंट लेते हैं, उस आउटर पॉइंट पर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू क्या आएगी मोमेंट की वजह से, 32 m/πd³।
तो उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा बी इज 3200 पी बाय पाई इंटू 10⁻3। ये आ जाएगा 32 पी बाय 10 पाई। ये हो गया सिग्मा बी। एंड मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी के हिसाब से, मतलब ये एक ही नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, सो इट इज प्रिंसिपल स्ट्रेस फॉर दिस सेक्शन। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज गिवन बाय दिस एंड इट मस्ट बी लेस देन टाउ यील्ड। और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी के हिसाब से सिग्मा बी बाय 2 मस्ट बी लेस देन टाउ यील्ड इज सिग्मा वाई बाय 2। तो सिग्मा बी मस्ट बी लेस देन सिग्मा वाई, 32 p बाय 10 पाई मस्ट बी लेस देन, इट इज 200। लेट मी कैलकुलेट, 2000 into pi डिवाइड बाय 32। तो इसका आंसर आ रहा है p मस्ट बी लेस देन 196.349। तो p must be less than this and p must be less than this. So this is the correct answer because smallest of this value is this. So it is 196.35 is the correct answer. ठीक है, 17 का ये आंसर है। Now coming to the next question. तो दो स्लाइडर दे रखे हैं उन्होंने, A and B connected by rigid link L into two mutually perpendicular plane and frictionless guideways. At a particular instant, a slider A is moving downward with a speed 0.05 मीटर पर सेकंड। तो स्लाइडर की स्पीड ये है, तो पॉइंट ए भी स्लाइडर पे है उस इंस्टेंट पर, तो उसकी वैल्यू भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आ जाएगी, दैट इज 0.05 मीटर पर सेकंड। एंड सपोज दिस एंगल इससे थीटा, और ये पॉइंट बी की, मतलब सपोज ये नीचे आ रहा है तो ये ऑब्वियसली आगे जाने की कोशिश करेगा लाइक दिस। तो वी बी की मतलब वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी इज समथिंग लाइक दिस, से v, ठीक है। और क्या पूछा है उन्होंने, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर बी। तो स्लाइडर बी की वेलोसिटी इज नथिंग बट v, उसका मैग्नीट्यूड पूछा है। तो कैसे निकालेंगे हम, से दिस इज थीटा, दिस इज 90, दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज ऑल्सो 90 माइनस थीटा। और रिजिड बॉडी के लिए हमें पता है कि वेलोसिटी, मतलब सपोज ये रिजिड बॉडी है तो ये दो पॉइंट के बीच में का डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में और इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, वो क्या होनी चाहिए, सेम। मतलब उसके व्हाट वी से फाइबर के अलोंग जो वेलोसिटी है उसका रिलेटिव कंपोनेंट 0 होना चाहिए, ठीक है। मतलब इस डायरेक्शन में रिलेटिव कंपोनेंट होना ही नहीं चाहिए रिजिड बॉडी की डेफिनेशन के हिसाब से। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये 0.05, इसका कोसाइन कंपोनेंट इज एक्टिंग अलोंग ए बी, दैट इज कोसाइन ऑफ थीटा, एंड इट इज v, इसका भी कोसाइन कंपोनेंट, एंड इट्स वैल्यू इज कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। सो 0.05 कॉस थीटा एंड v टाइम्स साइन थीटा। तो v इज इक्वल टू 0.05 बाय tan थीटा, एंड tan थीटा इज नथिंग बट opposite, that is 2 by adjacent, that is 0.5. तो 0.05 by 4, 0.05 divided by 4, 0.0125 meter per second is the correct answer for this. Coming to the next question, क्या दिया है उन्होंने, एक बीम है simply supported ABC and it is subjected to the load as shown in the figure. A 20 kilonewton load is applied at B at a bracket with the help of welded bracket. और बीम has a rectangular cross section, मतलब क्रॉस सेक्शन दिया है बीम का, रेक्टेंगुलर है। तो मैक्सिमम ट्रांसफर शियर स्ट्रेस डेवलप इन द बीम। तो हमें पता है रेक्टेंगल में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होता है, इट इज 3/2 टाइम्स F/BD, मतलब 3/2 टाइम्स टाउ एवरेज। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब शियर फोर्स मैक्सिमम होगी। तो उसके लिए हमें पहले रिएक्शन निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालेंगे, सपोज यहाँ पे रिएक्शन आ रहे, यहाँ पे RC, एंड इसको यहाँ पर शिफ्ट करेंगे हम ऐसे कुछ इस तरीके से। तो ये क्या आएगा, इसके वजह से, इसके और इसके वजह से मोमेंट आएगा कुछ इस तरह, इस डायरेक्शन में ऐसा। तो
तो ये लोड हो जाएगा कैंसिल। तो मोमेंट की वैल्यू आएगी से एम क्या आ रहा है, एम इज 20 इंटू डिस्टेंस इज 0.25, तो इट इज 20.25, इट्स 5 किलो न्यूटन मीटर। डायरेक्शन दे दिया है मैंने। एंड लोड ये और ये मिलके मोमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बस एक डाउनवर्ड लोड एक्ट करेगा लाइक दिस 20 किलो न्यूटन। ये क्या है, इक्विवेलेंट मोमेंट एंड लोड ऑफ दिस फोर्स। इस फोर्स को यहाँ पे शिफ्ट किया हमने, तो इस फोर्स सिस्टम को इक्विवेलेंट फोर्स और मोमेंट से इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई फोर्स नहीं है अभी, ठीक है। तो दिस इज द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस बीम। तो अप्लाइंग मोमेंट अबाउट पॉइंट सी इज 0, तो आर ए मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस इज 2, इट इज प्रोड्यूसिंग मोमेंट लाइक दिस, माइनस ये मोमेंट इस तरीके से एक्ट कर रहा है एंड इट्स वैल्यू इज 5 किलो न्यूटन मीटर। इस 20 की वजह से मोमेंट जो आएगा वो भी इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू -20 इंटू 1। और डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग की इंटेंसिटी भी इसका CG आएगा B पर, और उसकी वैल्यू आएगी 5 इंटू 0.5 मतलब 1, तो इसका नेट आएगा 5, और उसका डिस्टेंस भी है पॉइंट C से 1, सो -5 इंटू 1 इक्वल टू 0। तो आर ए इज इक्वल टू 30/2, तो आर ए की वैल्यू आ जाएगी 15 किलो न्यूटन। जब आर ए 15 आ गया तो आर सी क्या आ जाएगा, we know that RA plus RC is equal to sum of all forces in downward direction. So it is 20 plus 5 into 1, that is 25, और 25 में से 15 गया तो RC की वैल्यू आएगी 10 किलो न्यूटन। तो अभी हमें मैक्सिमम शियर फोर्स निकालना है, तो पॉइंट ए पर आ जाएगा मैक्सिमम शियर फोर्स की वैल्यू 15 किलो न्यूटन। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे यहाँ तक तो कुछ बदलेगा नहीं, वाई बिकॉज कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, और यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करना चालू कर दिए, तो ये तो कम होते जाएगा। वाई बिकॉज दिस इज प्रोड्यूसिंग अ व्हाट इज ए क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड इट विल प्रोड्यूस एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। सो पॉइंट बी तक तो कोई चेंज नहीं आएगा, पॉइंट बी पर चेंज आ सकता है। वाई बिकॉज ये 20 किलो न्यूटन का कॉन्सेंट्रेटेड लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो पॉइंट बी पर हम एक बार शियर फोर्स निकालेंगे, तो इट इज 15 किलो न्यूटन पॉजिटिव एंड माइनस सेक्शन बी पर निकाल रहे हैं हम, तो इट इज 5 इंटू 0.5। वाई बिकॉज दिस डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग की वजह से सेक्शन बी पर कितना आएगा 0.5 इंटू 5 एंड इट इज -20, तो इट इज 15 माइनस 2.5 -20, सो 22.5 प्लस 15, तो ये जो भी वैल्यू आएगी वो 15 से कम ही आएगी। और इधर भी सेम आर्गुमेंट फॉलो करते आएंगे, तो यहाँ पर 10 है और यहाँ पर तो 10 से ज़्यादा कहीं पे हो नहीं सकता बी तक, ठीक है। तो मैक्सिमम शियर फोर्स जो हो जाएगी दैट इज नथिंग बट 15 किलो न्यूटन। तो टाउ मैक्स इज 1.5 इंटू इट इज 15 इंटू 10⁻³ न्यूटन, इट इज 15 100 so it is 15 megapascal is the correct answer. Why? F is in Newton and it is in mm square, so Newton per mm square is megapascal। 19 का आंसर आ गया 15 megapascal। Coming to the question number 20, तो एक रिजिड रॉड दिया उन्होंने ABC in the form of a quarter circle arc, radius R, hinge at C and supported by roller at B. Vertical force P is applied at end A of the bar for reaction at B and C to be equal in magnitude। तो B पर और C पर जो रिएक्शन है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, ऐसा बोला है उन्होंने। तो इस कंडीशन के लिए थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो सपोज रोलर को रिप्लेस कर दिया मैंने, तो यहाँ B पर जो रिएक्शन आएगी इससे RB एंड दिस इज थीटा, तो हॉरिजॉन्टल से RB कितना एंगल बनाएगी थीटा। इसको रिजॉल्व करेंगे हम RB को, तो इट इज RB टाइम्स कोसाइन ऑफ थीटा
and its vertical component is RB times sin theta, RB times sin theta. एंड RC को, ये सपोर्ट को निकाल के रिएक्शन से रिप्लेस करेंगे तो इट इज RCH एंड इट इज RCB, रिएक्शन एट C. तो अभी क्या करना है हमें, सबसे पहले इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाएंगे. समेशन fx इज 0, तो इट इज RB cos थीटा माइनस RCH इज इक्वल टू 0. तो RCH इज नथिंग बट RB cos थीटा. तो RCH इज RB कोसाइन ऑफ थीटा. ये आ गया एक इक्वेशन. सिमिलरली समेशन fy इज 0, समेशन fy 0, तो fy क्या आ जाएगा, माइनस RB साइन थीटा माइनस RCB इज इक्वल टू P. ठीक है ना, सॉरी, प्लस P इज इक्वल टू 0. तो P की वैल्यू आ जाएगी RB साइन थीटा प्लस RCB. तो P इज इक्वल टू RB साइन थीटा प्लस RCB. ये कौन सा इक्वेशन बची है, fx हो गया, fy हो गया, अभी मोमेंट वाला बची है. तो कैलकुलेटिंग समेशन मोमेंट अबाउट पॉइंट C इज 0. तो P का डिस्टेंस क्या है पॉइंट C से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज R, और उसके मोमेंट का सेंस है ऐसा, लाइक ये क्लॉकवाइज है, तो इट इज P मल्टीप्लाइड बाय R. एंड RB साइन थीटा का मोमेंट क्या आ जाएगा, RB साइन थीटा इज काउंटर क्लॉकवाइज, दैट इज माइनस RB साइन थीटा. काउंटर क्लॉकवाइज है और ये जो डिस्टेंस है इट इज थीटा, सो दिस इज ऑल्सो थीटा, तो इट इज R cos थीटा. ठीक है ना, ये RB साइन थीटा और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये इज R cos थीटा. वाई, बिकॉज दिस इज थीटा एंड दिस इज R, सो दिस इज R cos थीटा. एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा, P के वजह से मोमेंट हो गया अबाउट C, RB साइन थीटा की वजह से मोमेंट हो गया, एंड RB cos थीटा की वजह से मोमेंट आ जाएगा. इट इज ऑल्सो इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो इट इज RB cos थीटा. एंड ये डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये टोटल डिस्टेंस है R हमारा, और ये हो गया हमारा R साइन थीटा. वाई, बिकॉज दिस इज थीटा, सो अपोजिट साइड इज R साइन थीटा. तो ये डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी R माइनस R साइन थीटा इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो सारे फोर्सेस की वजह से मोमेंट आ गया हमारा. दैट इज PR माइनस RB R साइन थीटा कॉस थीटा माइनस RB R cos ऑफ थीटा प्लस RB R cos ऑफ थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 0. तो ये वाला टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा. तो क्या आ जाएगा हमारा, PR इज इक्वल टू RB R cos थीटा, दैट इज P इज इक्वल टू RB cos ऑफ थीटा. तो ये तीन इक्वेशन आ गए हमारे पास. अभी हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है, जिसके लिए B पर जो रिएक्शन है उसका मैग्नीट्यूड C पर जो रिएक्शन है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाए. तो करते हैं अभी हम वो. तो C पर जो रिएक्शन है उसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, RCH का होल स्क्वायर प्लस RCB का होल स्क्वायर अंडर रूट, एंड इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्शन एट B. तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, RCH होल स्क्वायर प्लस RCB होल स्क्वायर RB होल स्क्वायर. तो RCH इज RB cos थीटा होल स्क्वायर, RCB इज P माइनस RB साइन थीटा होल स्क्वायर इज RB होल स्क्वायर. तो RB स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस P स्क्वायर माइनस 2P RB साइन थीटा, इसको एक्सपांड करेंगे तो
RB square sin square theta is nothing but equal to RB square. RB square cos square theta, RB square sin square theta is nothing but RB square. और ये वाला RB square इस RB square के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, P square minus 2P RB sin theta is equal to 0 and P square is equal to 2P RB is nothing but P by cos theta into sin theta is equal to 0. सॉरी, इक्वल टू कर लिया हम, ज़ीरो करने की ज़रूरत नहीं है. तो प्रॉब्लम इज जस्ट सॉल्व. P square is equal to 2P square tan theta. Tan theta is nothing but half. Tan theta is 0.5. तो इसका आंसर आ जाएगा 20 का 26.565 degrees. So this is the correct answer for this. I hope you got it. Coming to the next question. तो एक मार्बल दे रखा है उन्होंने. मार्बल एम स्लाइड अलोंग अ फ्रिक्शनलेस लीनियर AB kept in a linear slide kept in a AB in a vertical plane. Marble is released from point A with a zero initial velocity. ये फ्रिक्शनलेस है AB जो स्लाइड है वो, और इनिशियल उसकी हाइट है 0.5 एंड वेलोसिटी है 0 एंड इट रीचेज द पॉइंट B अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. Assuming the acceleration due to gravity is 9.81 meter per second square, the speed of marble when it just reaches point B. तो यहाँ पर V कितनी होगी वो पूछ रहा है. तो सपोज दिस इज AB उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है. तो from energy equation, if no other forces are acting and system is frictionless, so final energy minus final energy is equal to initial energy, and it is final potential energy, that is potential energy at state B, kinetic energy at state B plus strain energy at state B is equal to potential energy at state A, kinetic energy at state A plus strain energy at state A. तो strain energy जैसा यहाँ कुछ भी नहीं है, तो it is 0. Kinetic energy at A is also 0. तो U at A, that is potential energy at A is mg, Z at A is 0.5 equal to potential energy at B is 0. Considering this as a datum, and kinetic energy at B is half m. VB square is nothing but V square. So V is equal to mm cancel. So it's 0.5 into 2 into G times under root. तो V is equal to under root G. तो 21 का आंसर है 3.132 meter per second. This is the correct answer for this. Coming to the final question. एक हॉरिजॉन्टल फोर्स दे रखा है 10 न्यूटन का, पॉइंट बी पर लग रहा है. अप्लाइड एट अ सपोर्ट ऑन द फ्रेम एज शोन इन द फिगर. कंसिडरिंग ओनली बेंडिंग डिफॉर्मेशन, वर्टिकल रिएक्शन इन सपोर्ट बी इज. तो इसको हम कैस्टिग्लियानोस थ्योरम से करना पड़ेगा इस प्रॉब्लम को. तो कैसे करना है, लेट मी शो यू. दिस इज ए, दिस इज बी. और पॉइंट बी पर क्या हो रहा है, सपोर्ट है एक और 10 न्यूटन की रिएक्शन लग रही है. तो suppose B is the reaction that is applied at point B and 10 kilonewton is a force. तो हम क्या करेंगे कि suppose at any angle theta it is a radius r. at any angle, किसी भी एक एंगल थीटा पर, थोड़ा इसको मैं क्लियरली बनाता हूँ. वेट फॉर फ्यू मिनट्स. सो कुछ इस तरीके से फ्रेम दिया हुआ, तो बी पर रिएक्शन लग रही है बी. तो हम इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दें इस पॉइंट पर एट एनी विच इज एट एनी आर्बिटरी एंगल थीटा. तो ये हो जाएगा बी बी एंड दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है
इज नथिंग बट ये टोटल है आर, ठीक है, एंड यहाँ से यहाँ तक होगा इट इज़ आर एंड इट इज़ थीटा, सो इट इज़ आर कॉस थीटा। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा रिमेनिंग वाला आर माइनस आर कॉस थीटा। तो बी के वजह से जो मोमेंट आएगा इट्स इन दिस डायरेक्शन एंड इसकी वैल्यू आएगी मोमेंट ड्यू टू बी इज बी इंटू आर माइनस आर कॉस थीटा। तो ये तो हो गया बी के वजह से। अभी 10 के वजह से क्या आएगा वो देख लेते हैं हम। बी का तो हो गया और हमें सिर्फ बेंडिंग मोमेंट के वजह से ही देखना है, जो कुछ भी देखना है जो रिएक्शन आएगी। इसलिए जो ट्रांसफर शियर और एक्सियल लोड की वजह से जो रिएक्शन आएगी उसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो पॉइंट सेम पॉइंट पर विच इज एट एंगल थीटा फिर से हम 10 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई करेंगे फॉर दिस, और ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा इट इज़ आर, सो दिस विल बी आर साइन थीटा। और इसकी वजह से जो मोमेंट आएगा इट इज़ इन दिस डायरेक्शन अपोजिट टू दिस, मोमेंट ड्यू टू 10 विल बी इक्वल टू 10 टाइम्स आर साइन थीटा। तो नेट मोमेंट क्या हो जाएगा, नेट बेंडिंग मोमेंट इज बी आर माइनस आर कॉस ऑफ थीटा माइनस 10 आर टाइम्स साइन थीटा। ये तो हो गया नेट बेंडिंग मोमेंट। तो स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग क्या हो जाएगी, इट इज एम स्क्वायर डी एक्स बाई 2 है। और इसके लिए डी एक्स क्या हो जाएगा, सपोज दिस इज डी थीटा, सो सपोज दिस इज डी एक्स, सो डी एक्स इज इक्वल टू आर डी थीटा इंटीग्रेशन एम स्क्वायर आर डी थीटा बाई 2 है एंड लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन थीटा इज वेरिंग फ्रॉम 0 से लेके पाई बाई 2 तक। तो u क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर आर डी थीटा बाई 2 0 से पाई बाई 2 तक। ये क्यों कर रहे हैं हम, तो हमें स्ट्रेन एनर्जी मिल जाएगी पूरे स्ट्रक्चर की ड्यू टू बेंडिंग। और जब हम स्ट्रेन एनर्जी को बी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और उसको 0 इक्वेट करेंगे, वाई, बिकॉज पॉइंट बी पर सपोर्ट है और पॉइंट बी कहीं पे भी डिफ्लेक्ट नहीं हो सकता। और स्ट्रेन एनर्जी का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू लोड क्या देता है हमें, डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ लोड। तो जब डिफ्लेक्शन ही 0 है तो ये वाला टर्म भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो वही करना है हमें, पहले हम स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे फिर बी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फाइनली रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो इट इज एम स्क्वायर इज नथिंग बट बी 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 10 टाइम्स साइन थीटा, आर भी है दैट इज स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर दैट इज आर क्यूब डी थीटा बाई 2 है, इट इज 0 से पाई बाई 2। तो यू विल कम आउट एज, सब सारी कांस्टेंट टर्म बाहर ले लेते हैं हम, दैट इज आर क्यूब बाई 2 है एंड इट इज 0 से पाई बाई 2 बी 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 10 साइन थीटा स्क्वायर डी थीटा। ये तो हो गया कांस्टेंट, u इज इक्वल टू इट इज से कांस्टेंट, मतलब ये सारा कांस्टेंट ही है ना। इसकी वैल्यू अभी के लिए मान लेते हैं हम c है, इट इज 0 से पाई बाई 2। अब इसको सॉल्व करना है हमें, क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस, वेट अ सेकेंड, सो इसका स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स बी 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 10 साइन थीटा दैट इज 20 साइन थीटा प्लस 10 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टाइम्स डी थीटा। तो हमें ये इंटीग्रेशन करना पड़ेगा स्ट्रेन एनर्जी निकालने के लिए। तो एक एक टर्म को इंटीग्रेट करते हैं हम, ठीक है। पहला से I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा होल स्क्वायर डी थीटा, लिमिट पता है हमें 0 से पाई बाई 2 एंड ये क्या आ जाएगा, बी तो कांस्टेंट है, सो बी स्क्वायर विल कम आउट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1 माइनस 2 टाइम्स कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो ये हो गया हमारा बी स्क्वायर, इट इज 1 माइनस 2 कॉस थीटा
एंड कॉस स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2, ठीक है। ये हो गया डी थीटा। इंटीग्रेशन लिमिट आर फ्रॉम 0 से पाई बाय 2। I1 की वैल्यू आ गई हमारी बी स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा 2 टाइम्स कॉस थीटा का साइन थीटा प्लस थीटा बाय 2 प्लस साइन 2 थीटा बाय 4। इंटीग्रेट करने के बाद ये आ जाएगा आंसर। तो बी स्क्वायर थीटा प्लस थीटा बाय 2 इज 3 बाय 2 थीटा एंड थीटा इज पाई बाय 2। लिमिट पुट करने के बाद -2 टाइम्स साइन थीटा इज -2 और यहाँ पाई बाय 2 पुट करेंगे तो 0 आएगा और बाकी जगह 0 ही आएगा 0 पुट करने के बाद। तो I1 की वैल्यू क्या आ गई, बी स्क्वायर 3 पाई बाय 4 -2। दिस इज नथिंग बट I1 आ गया। अभी I2 क्या है, I2 के लिए सॉल्व करना है अभी हमें। ऊपर ही सॉल्व कर देता हूँ मैं, नीचे करता हूँ। 20b I2 is -20b 1 minus cos theta sin theta, ओके। -20b 1 minus cos theta sin theta d theta. Theta is varying from 0 to pi by 2, so I2 will be -20b, ये आ जाएगा 0 से पाई बाय 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया डी थीटा -20b 0 to पाई बाय 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाय 2 टाइम्स डी थीटा। तो इट विल कम आउट एज -20b। साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा एंड इसका हो जाएगा प्लस कॉस 2 थीटा बाय 4 0 से पाई बाय 2 तक -20b पाई बाय 2 रखेंगे लिमिट, तो ये हो जाएगा -0 प्लस पाई बाय 2 इज कॉस पाई दैट इज -1/4 माइनस ऑफ 0 रखेंगे तो ये -1 या 0 रखेंगे तो +1/4। इसका आंसर आएगा -20b -1/4 इट इज +1 -1/4 दैट इज 4/4, तो -3/4 मतलब +3/4। तो ये हो गया -20b दैट इज 2/4, so it will come out as -10b, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड इंटीग्रेशन। और I1 की वैल्यू क्या आ गई थी हमारी, b स्क्वायर 3 पाई बाय 4 -2, इट इज b स्क्वायर 3 पाई बाय 4 -2। ये I1 आ गया था। I2 आ गया हमारा -10b। अभी बचा हमारा तीसरा वाला पार्ट जो इंटीग्रेट करने का बाकी है, दैट इज दिस 10 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। सो इट इज I3 10 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा 0 to पाई बाय 2 एंड 10 स्क्वायर साइन स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 minus cos 2 थीटा बाय 2 डी थीटा। आइडेंटिटी रहती है ट्रिग्नोमेट्री वाली, तो 10 स्क्वायर इज नथिंग बट 100 इज आफ्टर सॉल्विंग इट इज थीटा बाय 2 माइनस साइन 2 थीटा बाय 4 0 to पाई बाय 2। After putting the limits it is 100 पाई बाय 4 और ये 0 आ जाएगा, so it is 25 times पाई, it is nothing but I3। तो I1 आ गया, I2 आ गया, I3 आ गया, तो U क्या हो गया, U is sum of I1 I2 I3 that is constant into b square 3 पाई बाय 4 -2 -10b
प्लस 25 टाइम्स पाई, ये आ गई u की वैल्यू, दैट इज स्ट्रेन एनर्जी. एंड व्हेन वी विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू b एंड इक्वेट इट टू 0, तो c टाइम्स 2b 3 पाई बाय 4 माइनस 2 माइनस 10 प्लस 0 इज इक्वल टू 0. और c तो 0 के बराबर नहीं है, तो यही 0 के बराबर होगा. So it is 2b 3 pi by 4 minus 2 is equal to 10 and it will come out as b की वैल्यू आएगी हमारी सॉल्व करने के बाद 14.037. It's in Newton I think. So it's 14.037 Newton. So this is the correct answer and thanks for watching.